کون؟ انکل میں حمزہ رضا. اندر آ جاؤ بیٹا، دروازہ کھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکل یہ رہا میرے اونٹ کا گوشت. آپ کا تیسرا دوست کہاں ہے؟ وہ تو دمبا لایا تھا. یہ رہا میرے دمبے کا گوشت. لیکن انکل آپ کے فریزر میں تو جگہ ہی نہیں. لگتا تو یہی ہے. کہاں رکھیں گے اسے؟ چلو بھاگو یہاں سے، اپنا کام کرو. کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنی اسمیل، اف. اللہ خیر کرے، یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ حیدر رضا صاحب، مجھے لگتا ہے اعظم بھائی کے گھر سے اسمیل آ رہی ہے. سڑک پر آلائشیں بھی نہیں، پھر اتنی اسمیل. حیرت ہے. میرے ڈیپ فریزر نے دھوکہ دے دیا. ڈیپ فریزر تو آپ نیا لائے تھے نا؟ پتا نہیں کس کی نظر لگ گئی، سارا گوشت ہی خراب ہو گیا. یہ تو ہونا ہی تھا. آپ پریشان نہ ہوں، آج رات ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، ضرور تشریف لائیے گا. جی ضرور حیدر رضا صاحب، میں آؤں گا. حیدر رضا صاحب، قربانی کے گوشت کے تو 3 حصے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو سارا ہی جانور فریزر میں اسٹور کر لیتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، اعظم صاحب نے جو کیا اور جو ان کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رنگے ہاتھوں پکڑا رہے ہیں اعظم صاحب کو. اللہ اللہ. اعظم صاحب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ فریج بھی بھر رہے ہیں، پیٹ بھی بھر رہے ہیں، اور اپنے بدن میں بھی ہوا بھر رہے ہیں. اچھا ہوا نہیں، چربی چڑھا رہے ہیں. یہ چونکہ وہ نقلی ہے، وہ اے آئی جنریٹ ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ سامنے یا کسی کو بھی پیچھے سے بھی ایسی بات نہ کی جائے. میں تلطف کے لیے میں نے یہ بات کی. تو اب یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جب فریز میں بھرتے رہیں گے تو اوور لوڈ جو بھی ہوگا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. تو اصل وہ ان کے ڈیپ فریزر کو کسی کی نظر کیا لگی، اعظم صاحب کی حرص اس کو کھا گئی، اس لیے خراب ہو گیا. یہ گوشت پر گوشت یہ ڈالے جا رہے تھے، تو ہر اس کا ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. کوئی 1 من اٹھا سکتا ہے، اس پہ 5 من لاد دیں گے تو گر ہی جائے گا نا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو ہی جائے گا. تو اس طرح یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ حرص اچھی نہیں ہے. پھر اسمیل آ رہی تھی، اسمیل مانے بدبو. یہ بدبو والا ماحول دکھا کر کے لوگ گزر رہے ہیں، بدبو کر رہے ہیں، تو کسی نے ان کا نام ہی لے لیا. تو یہ بتانے کے لیے زیادہ گوشت رکھیں گے تو یوں پول بھی کھلے گا کہ یہ لالچی آدمی کا گھر ہے. انہیں اتنا جمع کر لیا جتنا یہ کھاتا نہیں ہے. وہ حدیث پاک ہے نا، الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، کہ دنیا جیفہ بولیا نا، ہاں دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے. تو یہ کتا جو ہے نا، یہ بڑا حریص ہوتا ہے. حریصوں کی مثال یہ کتوں پر صادق آتی ہے. اس میں جیسے کہ آپ کوے اور کتے کی مثال لے لیں کہ کوا ایک مرا ہوا چوہا بھی دیکھے گا، کائیں 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 کر کے اپنے دوستوں کی دعوت کرے گا، سب کو بلائے گا، اور مل کے کھاتے، مجھے چوہا ملا ہے. یہ مل کے چونچے مار مار کے کھا رہے ہوں گے. اور کتے کے سامنے اگر مری ہوئی بھینس بھی پڑی ہے تو اگر دوسرا کتا آ گیا تو کو کر کے اس کو پنجے مارے کہ ساری بھینس میں کھاؤں گا. بھلے وہ کھا نہیں سکے گا لیکن ساری بھینس میں نے کھانی ہے. یہ اعظم صاحب کی مثال ہے جو اس میں بتایا گیا. فریج میں کہ فریج بھرتے گئے میں کسی کو نہیں کھانے دوں گا، میں کھاؤں گا. تو یہ بھی کھانے سے رہ گئے، اور گوشت جو تھا وہ ناراض ہو گیا، سڑ گیا اور بدبو پھیل گئی اور سب یہ ہوا. تو یہ بقرعید آ رہی ہے تو فریج ایک نہیں 2 فریج رکھتے ہوں گے لوگ، اور دے بھرتے ہوں گے اس کو، اور پھر
फेंकने में भी शर्म आती होगी कि गोश्त अगर फेंकने भी जाएंगे तो लोग देखेंगे, बोले ये क्या इतना गोश्त। जैसे लालची लोग हैं कि कुर्बानी का गोश्त किसी के पेट में जाता, ये भर के इन्होंने रखा। फिर क्वालिटी भी रहना मुश्किल होती है गोश्त की, ज़्यादा देर तक अगर रखे तो इतना सबको रखने का आइडिया भी नहीं होता होगा, तो यूँ भी ख़राब हो जाता होगा। तो बहरहाल ये कि इतना फ्रिज में गोश्त डाला जाए कि जितना हम खा सकते हैं। ये फ्रिज ने हमको लालची बना दिया। सच्ची बात ये कि हम लोगों ने बचपन में देखा था ना, फ्रिज तो होते नहीं थे, तो ये जो खाना भी बच जाता था वो फकीरों को हाथों हाथ वो दे देते थे। अच्छा, फकीर भी ऐसे मतलब मैंने देखे हैं, फकीर भी क्या वो मजदूरी करना दिन भर, शाम को आकर गली में बैठ जाना मोहल्ले में, फ्रिज तो थे नहीं कि ये डालेंगे कहीं मुझे ही देंगे, इस तरह के बैठ जाते थे। और इनको ज़रा देना ही पड़ता था कि डालें कहाँ इसको, सालन बच गया, चावल बच गए, इनको दे दिया। तो ये क्या करते थे पता है जी, मैंने जो देखा है बताता हूँ। फकीर भी मतलब आला दर्जे के फकीर थे। बोटियाँ, आलू, शोरबा, साइड में जाके कल्टी गिरा देना, ये मैंने देखा है। मतलब तो क्या करेंगे, शोरबा जूस पियेंगे, शोरबा तो नहीं पी सकता आदमी। तो ये हालत पहले थी। वो ये सारे कि इतना पकता भी नहीं होगा कि जितना इतना बच जाए कि फेंकना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रा बच जाता है बाद वक्त। और छिक्के होते थे, छत में लटकाते थे, उसमें रखते थे कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ा एक दो दिन हवा लगती थी और ये तरकीब बनती थी। हवा भी कुदरती हवा, पंखे का, हमारे घर में तो पंखा नहीं था ना, मतलब ये कि ट्यूबलाइट थी, तो पंखे हवा कुदरती हवा आती थी। तो ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब बनती थी। फ्रिज का तो कुछ पता नहीं था कि ये क्या होता है, ये बाद में दाखिल हुआ है। तो यूँ मैं कह रहा हूँ, तो ये सब ज़रा बहुत सारों का यही हाल होता होगा कि वो फ्रिज नहीं होता होगा तो ये बच्चा पेट में चला जाता होगा। हाँ, गोश्त बचाने का तरीका फिर ये होता था कि रस्सियाँ बांध के घरों में, और बोटियाँ, इसको हम लिवरी बोलते थे, सुनते लिवरी है ना, ये बोटी को सुखाते थे तवा में। अब बोटी भी अब ज़्यादा भी सुखा लेते होंगे ज़ाहिर है, इस सूखी भी बोटी खाना मुश्किल होता था, ये बता दूँ इनको। ये ना फिर ये शायद रात भर भिगोते थे, भीग कर कुछ नरम होती फिर इसको पकाते थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता था इसका। हमारे इसको सुंडिया बोलते हुजूर। हम अपनी अपनी कौम के अंदर हाँ, जबान, हम कुतियाने वाले मेहमान इसको लिवरी, हमारे उसमें सुंडी हाँ, ये बोलते हैं। केशोद कुतियाना थोड़ा यूं करीब करीब है मेरा ख्याल है, ये माटवे वाले हैं ना। उस पर मसाले और हल्दियाँ वगैरह लगाकर उसको बाकायदा सुखाकर फिर उसको वो तलने वाला निज़ाम होता था। सूखा गोश्त होता लेकिन उसको फिर तला जाता। मतलब हमारे यहाँ ये अब मुख्तलिफ अंदाज से लोग करते थे, हम तो खाली खाली हमारे तो रस्सी में डाल देते थे। मुझे जो याद पड़ता है हमारे घर में, मैं तो बच्चा था सर इतना। हुजूर, ये आपने जो फ्रिज की बात की, तो इसमें अगर एक मशवरा ये भी इरशाद फरमा दें कि बाज़ ऐसे होते हैं जो जानने वाले होते हैं, गरीब भी होते हैं, या मतलब जिनको देना होता है, तो वो भी ये कहते हैं यार आप अपने रख दे, हम ले जाएंगे। तो अब जैसे सुबह 9-10 बजे गोश्त आ जाता है घर के अंदर बाज़ औक़ात, अब वो थैली वगैरह में डाल कर ये रख दिया, अब वो शाम को आए नहीं आए, रात को आए नहीं आए, यार हम अगले दिन ले जाएंगे। और हमारे लोड शेडिंग है कराची और पाकिस्तान के अंदर, उस पर फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीज के अंदर बाज़ औक़ात गोश्त रहना ये इतनी आजमाइश हो जाती है। तो ये जो पैदर पे गोश्त होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने 10 थैलियाँ या 15 थैलियाँ भी बांटनी है, छोटी छोटी भी, तो एक फ्रिज के अंदर कितनी थैलियाँ आ जाएंगी। तो वो रखते हैं, लेकिन वो लेने वाले भी बाज़ औक़ात लेट हो जाते हैं, या फिर पहुँचाने के ताल्लुक से भी ये होता है कि वो गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद कर देते हैं, और उसमें इतनी गर्माश होती है कि वो पहुँचाते पहुँचाते भी लेट हो जाते। तो इनको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? अब इसमें यह कि मुरुवत में लेना भी पड़ता है, या बाज़ औक़ात मेरे साथ जो हमारे साथ हुआ है ना, एक चुटकुला, पुराना चुटकुला है मेरी जवानी का। तो हमारे पास फ्रिज तो था नहीं, तो अब ये कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरसी आती है 14वीं रात ये बकरीद की, क्यों मिना में लू चली थी, हज के लिए गए थे, तो वहीं लापता हो गए, तो फिर जद्दा शरीफ में हॉस्पिटल में ये दस्तयाब हुए थे, वफात पाई इन्होंने जद्दा शरीफ में, हज के लिए गए थे। तो 14वीं शब
जो मेरी मालूमात अपने घर में सुन सुना कर, तो 14वीं शब को हम वालिद साहब की बरसी करते हैं, कुछ तो ईसा अलैहि सलाम का खाना वगैरह। तो अब वो कोई ऐसा दोस्ती हो गई किसी से, अब ये ऑफर करे करो हुक्म है, जो हुक्म है बोलो, जो हुक्म है बोला भी है, तो हमने हुक्म कर दिया, समझे, कि ये थोड़ा गोश्त अपने फ्रिज में रख लो ना, वालिद साहब की बरसी है तो मैं इंशाल्लाह ले लूँगा आपसे। हाँ बिल्कुल, पूरा एक खाना आपके लिए हम मुख्तस कर देंगे। अच्छा, मैंने घर में बात की बहन को कि यूँ मैंने तरकीब बनाई, तो वो बोले ये कैसे हो सकता है, फ्रिज में एक ही तो बर्फ़ का खाना होता है, जो कौन सा मुख्तस करेंगे खाना, तो वो होता ही नहीं है, मतलब वाकई। तो मुझे भी नहीं कुछ, मुझे थोड़ी पता था कैसा होता है। तो मैंने तो उसके शफ़क़त, उसके अखलाक, उसके मिलनसारी और ज़ाहरी लेबल जो था गुफ्तगू का, मैं उसमें आ गया, दे दिया गोश्त, तो बड़े अच्छे खंदा पेशानी से ले देकर वो रख दिया इन्होंने। अब ज़ाहिर है कि वो खाने दूसरे थी तो बाद में सब थे कि कोई, मुझे पता चला कि बोले एक ही बर्फ़ का होता है, नीचे ठंडक का होता है, तो उसमें गोश्त नहीं रह सकता। तो खैर, तो गोश्त आया और ये कचरा कुंडी की नज़र होना था, उसने थोड़ी काम आना था। वो निचला खाना जो हवा का, उसमें गोश्त कच्चा थोड़ी रह सकता है, तो नाराज हो गया गोश्त, समझे। तो यूं मतलब मेरा चुटकुला हुआ था। तो यूं किसी के पास रखवाना भी यूं समझ में आया कि इसको बाहर में डालना नहीं चाहिए। अब यार इतनी ऑफरें करे, जान हाजिर करे अपने को, मतलब अपने को यार यूं लगे ना कि यार ये तो बस अपने बोलेंगे ना यार तुम्हारा घर दे दो तो ये हट जाए, चाबी सौंप दे। अब ऐसे अखलाक दिखाए अपने को ना, फिर ये खाना भी अपने खाने में, बर्फ़ के खाने में अपना गोश्त और अब दूसरे गोश्त निचले खाने में, जो होना था हो गया। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे उनको भी हमको भी, मैं बातों में आ गया। एक बार ये ऐसा धोखा खाया, यादगार धोखा है मेरा। तो इसलिए किसी से फ्रिज में मुतालबा कर रहा ये भी मुनासिब नहीं है। ऑफर की और मैंने कबूल की तो ये शरन, ये वो सवाल नहीं है जिसमें जिसकी मजम्मत की जाएगी, लेकिन ये कि जनरली ऐसा नहीं होता कि लोग ऑफरें करें, वैसे ही ताल्लुकात की बिना पर, दोस्ती की बिना पर बोल देते होंगे कि हमारा ज़रा ये रख लो ना, तो सब बोलना नहीं चाहिए। रखवाने के हर एक का अपना फ्रिज उस वक्त बिल्कुल बिजी होता है। ये पूरे साल में ये तो सीज़न होती है, यानी बकरीद से पहले फ्रिज बनाने वालों के यहाँ लाइन लगी रहती होगी, डीप फ्रीज़र वालों के यहाँ लाइन लगी रही होती है, जो बेचते हैं इनके यहाँ लाइन लगी होती है, खूब बिकते होंगे। ये भी बकरीद के फ़वाइद में से कि मतलब इतना लोगों को इन दिनों रोज़गार मिलता है, कारीगर इसके होते हैं, सबको रोज़गार मिलता है, ठीक है ना, बकरीद का ये साइड प्रॉफिट। और फिर बकरीद के बाद भी मेरा ख्याल है वो जैसे आजम साहब का फ्रिज जो था उसको नज़र लग गई ना, तो बहुत सौ को मतलब हिर्स की नज़र लग जाती होगी फ्रिजों को, तो वो फिर हॉस्पिटल पहुंचते होंगे, यानी वो मैकेनिक के पास, इनके बनाने वालों के पास। तो इस तरह मतलब सबको लाखों करोड़ों रुपए का रोज़गार इन दिनों इस हवाले से भी मिलता है।